Assalamu alaikum, class 8. How are you all? I hope that all of you are doing fine. So, today from Sadaqain Education Services online classes, we are going to learn the chapter number 13, that is the third chapter of our novel Matilda. And today is session 1. Yes, class 8. So, this is our third chapter of the novel Matilda, chapter number 13, the weekly test. The characters are Matilda, Nigel, a classmate, Mrs. Trunchbull, the headmistress, and Miss Honey, the class teacher. So, class 8, after this slides, you will get the explanation slides, and after the explanation, you will find the slides of your home assignment that are your short and long question and answers that you will do it in your English text homework copy, and you will be announced later to submit for checking. Yes, now class 8 to start the chapter, the weekly test. So the first page, let's start the reading and then I'll explain you. At 2 o'clock sharp, the class assembled, including Miss Honey, who noted that the jug of water and the glass were in the proper place. Then she took up a position, standing right at the back. Everyone waited. Suddenly in marched the gigantic figure of headmistress, in her belted smock and green breeches. "Good afternoon, children," she barked. "Good afternoon, Miss Trunchbull," they chirped. The headmistress stood before the class, legs apart, hands on hips, glaring at the small boys and girls who sat nervously at their desk in front of her. "Not a very pretty sight," she said. Her expression was out of utter distaste, as though she were looking at something a dog had done in the middle of the floor. "What a bunch of nauseating little warts you are!" Everyone had the sense to stay silent. So at 2 o'clock, as it was the time for Miss Trunchbull to take the class, so she had entered the class at around 2 o'clock, as Miss Honey has informed the class before. तो 2 बजे तो है मिस ट्रंचबुल की क्लास का टाइम था, तो वो क्लास में आ गई. तो मिस हनी नोटेड के उन्होंने कहा था कि उनका पानी का जग और ग्लास जो है शुड बी इन द प्रॉपर प्लेस ऑन द टेबल, तो वो वहाँ पर रखा हुआ था. उन्होंने रोका, तो उसके बाद अचानक फिर जो है एक जायजेंटिक यानी बड़ा सा फिगर जो है वो अंदर आया. एज यू नो कि मिस ट्रंचबुल वाज लार्ज इन द साइज़, वो काफ़ी हेल्दी थी. वो अंदर आई और ज़ोर से उन्होंने गुस्से वाली आवाज़ में बच्चों को ट्रीट किया. गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन ऑल्सो जो है अपनी मासूम सी आवाज़ उन्होंने गुड आफ्टरनून कहा. तो शी वॉज स्टैंडिंग, किस तरह से वो खड़ी थी उनको बताया, हैंड्स ऑन हर हिप्स, और टांगे उनकी जो है साथ नहीं रहती थी, लाइक एट ईज पोजीशन में वो खड़ी हुई थी. ठीक है जी. तो बच्चों को देख के उन्होंने कहा, शी सेड नॉट अ वेरी गुड, उनको उनका जो देखकर कुछ अच्छा एक्सप्रेशंस नहीं था, तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई बच्चों को देखकर. बट स्टिल एवरीवन, एज इट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय मिस हनी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे, तो सारे बच्चे जो है वहाँ पर खामोश रहे. लेकिन वो स्टिल जो है बच्चों को थोड़ा सा डिग्रेड कर रही थी. "It makes me vomit," she went on, "to think that I am going to have to put up with a load of garbage like you in my school for the next 6 years. I can see that I am going to have to expel as many of you as possible as soon as to save myself from going around the bend." She paused and snorted several times. It was a very curious noise. You can hear them. You can hear the same sorting of things if you walk through the riding stable when the horses are being fed. I suppose," she went on, "your mothers and fathers tell you you are wonderful. Well, I'm here to tell you that the opposite, and you'd better believe me. Stand up, everybody." They all got up quickly to their feet. ठीक है जी. तो एज इट वाज रिटन हियर कि हर एक्सप्रेशंस एंड हर फीलिंग्स आर नॉट वेरी वेल फॉर द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे आई फील लाइक मुझे अगर तुम लोगों को 6 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर दैट मैं आई शुड एक्सपेल सम ऑफ यू फ्रॉम द स्कूल एज सुन एज पॉसिबल. कुछ लोगों को मैं स्कूल से निकाल दूँ. तो जो है वो नाक से अपने खनकारने की कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी. यू नो, व्हेन यू गो टू द राइडिंग स्टेबल वेयर हॉर्सेस आर बीइंग केप्ट एंड फेड, तो वहाँ पर जो घोड़ों की आवाज़, उस तरह से राइटर ने उसको कंपेयर किया है.
Then she continued that I think that your mothers and fathers think that you are very wonderful, लेकिन जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग को ज़्यादा वंडरफुल नहीं है। फिर उन्होंने गुस्सों से कहा कि एवरीबडी टू स्टैंड अप, तो सारे वहाँ पर खड़े हो गए। Now put your hands in front of you as I walk past. I want you to turn them over so I can see if they are clean on both sides. The Trunchbull began to a slow march along the rows of the desk inspecting the hands. All went well until she came to a small boy in the second row. What's your name? She barked. Nigel, the boy said. Nigel what? Nigel Hicks, the boy said. Nigel Hicks what? The Trunchbull bellowed. She bellowed so loud she nearly blew the little chap out of the window. तो फिर उन्होंने कहा कि सब बच्चे जो हैं अपने हाथ बाहर निकालें और डेस्क पर रख दें। एज यू वांटेड टू इंस्पेक्ट देयर हैंड्स के उनके हाथ साफ है नहीं है, नेल्स ट्रिम है नहीं है। सो एज शी वाज गोइंग थ्रू द रोज, तो आखिर में एक वो बच्चे के पास आई और उससे उसका नाम पूछा लाउडली। तो उसने कहा कि निगल। शी आस्क्ड निगल व्हाट? कौन निगल? उसने पूरा नाम बताया, निगल हिक्स। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि निगल हिक्स व्हाट? क्या है निगल हिक्स? तो इतने गुस्से से उन्होंने बोला, ऐसा लग रहा था कि वो उसका उड़ जाएगा या कुछ हवा से। That's it, Nigel said, unless you want my middle name as well. He was a brave little fellow, and one could see that he was trying not to be scared by the gorgon who towered above him. तो वो काफ़ी बच्चा बहादुरी से पेश आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो मिस ट्रंचबुल तो थी। ऑब्वियसली शी हैड अ बिग फेस एंड बिग बॉडी, काफ़ी बड़ा चेहरा, बड़ी सी फिगर थी वो। तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं ना डरूं। उन्होंने कहा बस ये इतना ही है मेरा नाम, अगर मिडिल नेम आपने चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट योर मिडिल नेम्स यू ब्लिस्टर, द गॉर्गन बेलड। व्हाट इज माइन? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मिडिल नेम नहीं, वो पूछ रही थी कि मेरा नाम क्या है। व्हाट इज माई नेम? मिस ट्रंचबुल, निगल सेड। उसने कहा कि मिस ट्रंचबुल है। सो देन यूज इट व्हेन यू एड्रेस मी। नाउ देन लेट्स ट्राई अगेन। व्हाट्स योर नेम? निगल हिक्स, मिस ट्रंचबुल, निगल सेड। तो उसने कहा कि दोबारा से बताओ और मेरा नाम भी साथ में लो। तो फिर उसने बताया कि निगल हिक्स, मिस ट्रंचबुल, पूरा तरह उसने कहा। योर हैंड्स आर फिल्थी निगल, व्हेन डिड यू लास्ट वॉश देम? तुमने कब इनको लास्ट टाइम धोया था? इतने गंदे हाथ हो रहे हैं। वेल लेट मी थिंक, निगल सेड, दैट्स rather difficult to remember exactly. I could have it could have been yesterday or it could have been the day before. तो निगल कहने लगा मुझे याद तो नहीं है, मे बी कल या परसों शायद मैंने हाथ धोए होंगे। The Trunchbull whose body and face seemed to be swell up as though she were being inflated by a bicycle pump. तो वो गुस्से से फूल गई जैसे किसी ने उनके अंदर हवा डाल दी है। I knew it. वो फिर जोर से कहने लगी कि जी मुझे पता था तुम ऐसे ही गंदे हो। I knew as soon as I saw you. मुझे यही यकीन था जब मैंने तुम्हें देखा कि तुमने इनको काफ़ी अरसे बाद धोया है। So here on the next page, like the boy had answered Miss Trunchbull that maybe it is yesterday or day before yesterday. तो she got very angry. तो बड़े गुस्से में आई, जैसे कि फूल गई गुस्से से, that somebody has pumped her up, कि किसी ने साइकिल के पंप से उनके अंदर हवा भर दी हो। तो गुस्से से कहने लगी, I knew it, she bellowed. I knew as soon as I saw you that you were nothing but a piece of filth. What is your father's job? A sewage worker? फिर वो गुस्से में कहने लगी कि जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम बहुत गंदे हो और ये वो इस तरह से। देन शी आस्क्ड द फादर्स जॉब, सीवेज वर्कर, वो क्या है? वो कोई सीवेज वर्कर है, यानी कोई जमादार या चपरासी टाइप हैं। तो बच्चे ने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, निगल सेड, अ जॉली गुड वन, ही सेज वी आर ऑल कवर्ड विद बग्स एनीवे दैट अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा डर्ट नेवर हर्ट्स एनीवन। तो कहता है मेरे फादर एक डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनका कहना ये है कि हम सब जो है गंद होती है हमारे ऊपर थोड़ा बहुत, तो अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ग्लैड ही इज़ नॉट माई डॉक्टर, द ट्रंचबुल सेड, एंड वाई आई माई आस्क, इज़ देयर अ बेक्ड बीन ऑन फ्रंट ऑफ योर शर्ट? तो कहने लगी ट्रंचबुल के अच्छा हुआ इस तरह के डॉक्टर्स, मेरे अपने कोई डॉक्टर नहीं है। फिर शी सॉ बीन, बेक्ड बीन ऑन द शर्ट। तो उसने पूछा कि ये बीन तुम्हारी शर्ट पर
क्यों लगा हुआ है जो उन्होंने लंच में खाया होगा। तो आगे क्या है कि वी हैड देम फॉर लंच मिस ट्रंचबुल एंड डू यू यूजुअली पुट योर लंच ऑन द फ्रंट ऑफ योर शर्ट निगल, इज दैट व्हाट दिस फेमस डॉक्टर फादर ऑफ योर्स हैड टॉट यू। तो वो कहने लगा कि हमने लंच में खाया था तो मे बी वो मेरी शर्ट पर गिर गया। फिर ट्रंचबुल ने पूछा कि इज़ दैट व्हाट योर फेमस डॉक्टर फादर, जो तुम्हारे अब्बू इतने फेमस डॉक्टर हैं तो उन्होंने क्या तुम्हें यही सिखाया है। सो बेक बीन्स आर हार्ड टू ईट मिस ट्रंचबुल, दे कीप फॉलिंग ऑफ माई फ्रॉक। कहने लगे काफ़ी मुश्किल से हम इनको खाते हैं तो अक्सर जो है ये गिर जाते हैं कपड़ों के ऊपर। बच्चे ने जवाब दिया, निगल ने। यू आर अ डिस्गस्टिंग, द ट्रंचबुल बेल, you are a walking germ factory. I don't wish to see you more of you today. Go and stand in the corner on one leg with your face to the wall. तो फिर उनको गुस्सा आया और कहने लगा तुम तो कहने लगी मिस ट्रंचबुल कि तुम तो एक चलती फिरती जो है जरासीम की फैक्ट्री हो और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती आज के दिन। तो जाओ एक टांग के ऊपर खड़े होके कॉर्नर में खड़े हो जाओ और अपना फेस जो है वो वॉल की तरफ रखो। बच्चे ने थोड़ी सी रेजिस्ट करने की कोशिश की कि मिस ट्रंचबुल डोंट आर्ग्यू विद मी बॉय और आई मेक यू स्टैंड ऑन योर हेड, नाउ डू एज यू आर टोल्ड। तो कहने लगी मुझसे बहस नहीं करो वरना मैं तुम्हारे सर के बल खड़े कराऊंगी और जाओ जो तुम्हें कहा जा रहा है वो करो। फिर निगल जो है वहाँ से चला गया। नाउ स्टे वेयर यू आर बॉय while I test your spelling to see if you have learned anything at all this past week। तो कहने लगे बस वहीं मुंह रखो अपना, पलट के खड़े रहो और मैं तुमसे चेक करती हूँ कि तुमने इस वीक में स्पेलिंग्स में क्या सीखा। नाउ स्पेल द वर्ड राइट। उन्होंने पूछा कि राइट वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग करो। Which one? Nigel asked. The thing you do with the pen or that means opposite to the wrong? He happened to be usually bright child as his mother had worked hard with him at home on the spelling and reading। तो उसने पूछा कि आप कौन से वाले राइट की बात कर रही हैं, जो हम पेन से करते हैं या जो रॉन्ग का अपोजिट होता है। तो वो कुछ अनयूजुअल चाइल्ड ब्राइट चाइल्ड था क्योंकि उसकी जो मदर है निगल की उन्होंने काफ़ी स्पेलिंग्स के ऊपर काम किया था घर पे, उसको काफ़ी सिखाती थी, पढ़ाती थी, रीडिंग वगैरह भी कराती थी। तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया द वन विद द पेन यू लिटिल फूल। कहने लगे बेवकूफ़, जो हम पेन से करते हैं उसकी स्पेलिंग बताओ। देन निगल स्पेल्ड द वर्ड करेक्टली। निगल ने सही स्पेलिंग बता दी विच सरप्राइज मिसेस ट्रंचबुल। ठीक है, शी थॉट शी हैड गिवन अ वेरी ट्रिकी वर्ड, वन दैट ही वुडंट हैव लर्नड एंड शी वाज पीव्ड एट ही हैड सक्सीडेड। वो समझी थी कि मैंने कोई मुश्किल वर्ड दिया है, शायद ना पढ़ा हो, लेकिन वो हैरान हुई जब उसने बता दिया। Then Nigel said, still balancing on one leg facing the wall, Miss Annie taught us how to spell a word, a very long word yesterday। उन्होंने जो है निगल अपने एक ही पाँव पे खड़ा रहा और चलता रहा मुश्किल से बैलेंस करने के लिए, और बताया कि हमें कल ही उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको कैसे सीखा जाता है, और कल भी उन्होंने कुछ वर्ड सिखाया। एंड व्हाट वर्ड वाज दैट? ट्रंचबुल आस्क्ड। ट्रंचबुल ने पूछा अच्छा कल कौन सा बड़ा वर्ड इन्होंने तुम्हें सिखाया है। और उनकी वॉइस जो है वो सॉफ्टर हो रही थी, तो निगल को पता नहीं था जब उनकी वॉइस सॉफ्ट होती है तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर। तो निगल ने कहा कल इन्होंने मैं डिफ़िकल्टी वर्ड सिखाया है। सो ट्रंचबुल सेड व्हाट नॉनसेंस, यू आर नॉट सपोज टू लर्न दीज वर्ड्स अंटिल यू आर 8 एटलीस्ट और 9। कहती है तुम्हें इतने बड़े इस तरह के वर्ड सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक तुम लोग 8 या 9 साल के ना हो जाते। और देन शी सेड दैट एंड डोंट ट्राई टू टेल मी दैट एवरीबॉडी इन द क्लास कैन स्पेल दिस वर्ड, यू आर लाइंग टू मी। निगल कहती है कि आई थिंक तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, ये मत कहना कि सब मुझे वर्ड्स की स्पेलिंग बता सकते हैं। देन निगल सेड कि इन ऑफुल चांस दैट टेस्ट एनीवन यू लाइक। तो आप किसी को भी देख लें। दैट ट्रेंट वाज डेंजरस ग्लिटर आइज रोव्ड अराउंड द क्लासरूम। फिर उनकी जो ट्रंचबुल की खतरनाक चमकती आंखें थी वो इधर उधर देखती रहीं क्लास के अंदर। फिर उन्होंने एक छोटी सी बच्ची जो कि कोने में बैठी हुई थी, हर नेम वाज प्रूडेंस, सो शी आस्क्ड हर टू स्पेल द वर्ड अमेजिंगली। प्रूडेंस स्पेल्ड द वर्ड करेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। बगैर किसी मुश्किल या हिचकिचाहट के उन्होंने जो है प्रूडेंस ने भी डिफ़िकल्ट की वर्ड ईजीली बता दी। और उन्होंने कहा फिर मिस ट्रंचबुल जो है थोड़ा सा नाराज़ भी हुई और एक हम्फ भी किया उन्होंने, आहसी भी भरी। कहने लगी आई सपोज मिस हनी वेस्टेड
whole of the lesson teaching you the spellings of the single word. मेरे ख्याल से मिस हनी ने पूरा लेसन वेस्ट किया तुम लोगों को एक वर्ड सिखाने के लिए. तो निगल ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शी टीचर्स इन 3 minutes so that we never forget. तो हमें 3 मिनट में सिखा देती हैं ताकि हम कभी ना भूलें. तो हेड मिस्ट्रेस कहती हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मैजिक मेथड मिस हनी. मिस हनी से पूछते हैं आप किस तरह सिखाती हैं, ये कैसा जादू आप उनके ऊपर बच्चे ऊपर कर देती है. तो निगल कहता है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ. वो चाहता था कि मिस हनी को रेस्क्यू करे. देन ही आस्क्ड दैट कैन आई पुट माय फुट डाउन एंड टर्न अराउंड प्लीज़ व्हाइल आई शो यू. तो ट्रंचबल कहती है कि नो स्टे एज यू आर एंड शो मी जस्ट द सेम. जैसे हो वैसे ही रहो और मुझे वैसे ही दिखाओ. ऑल राइट निगल सेड वॉबलिंग क्रेजली ऑन हिज वन लेग. जो है वो एक ही टांग पे बड़ी मुश्किल से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था. कहा चले मैं आपको करके दिखाता हूँ ये हमें कैसे सिखाती हैं. मिस हनी गिव्स अस अ लिटिल सॉन्ग अबाउट ईच वर्ड एंड वी ऑल सिंग इट टुगेदर. वो हमें छोटे से गाने के हिसाब से सिखाती हैं और हमारा आसानी से सीख जाते हैं. डिफ़िकल्टी भी इन्होंने गाने या पोइट्री लिरिक थोड़े से ट्यून्स के हिसाब से सिखाया तो वो फैसिनेट हो जाती हैं काफ़ी. मिस ट्रंचबल कहती हैं अच्छा वो कैसे. फिर निगल करके दिखाता है कि मिसेस डी, मिसेस आई, मिसेस एफ, एफ आई, मिसेस सी, मिसेस यू, मिसेस एल, टी, वाई. इस तरह से जो है हम सीखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो वो गुस्से में आती हैं कि ये तो बहुत ही बेकार तरीका है पढ़ाने का. और फिर वो मिस हनी से कहती हैं कि कट इट आउट इन द फिगर. ये किस तरह आप पढ़ा रही हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें मिस हनी से. तो मिस हनी जो है हल्के से उनसे बात करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि बट इट डज़ टीच देम सम ऑफ द हार्डर वर्ड्स वेरी वेल. फिर उनको गुस्सा दोबारा आ जाता है. कहती हैं कि डोंट आर्ग्यू विद मी मिस हनी. गुस्से से उन्होंने कहा जस्ट डू एज यूर टोल्ड. जैसे कहा जा रहा है वैसे करो. फिर उसके बाद वो क्लास से कहती है कि नाउ आई विल चेक यू विद द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. लेट्स सी इफ मिस हनी हैज़ टॉट यू. Yes, class 8. So this session gets complete here. These are given your short question and answers and long question and answers on the next slide. You will write down them in your English literature homework copy. See you in the next session inshallah. Allah Hafiz.